इस समय हम मौजूद हैं बन टोल प्लाजा नगरोटा में और आपको बता दूं सुबह 5 से 5:30 बजे का वाक्य है जब इस ट्रक से फायरिंग हुई थी और आपको बता दूं एक पुलिसकर्मी जो है वो ज़ख्मी हो गया था। ये ट्रक जम्मू से लेकर श्रीनगर की तरफ जा रहा था और बताया जा रहा था कि इसमें 5 से 6 व्यक्ति जो है इसमें मौजूद थे। 3 आतंकवादी जो हैं वो हमारे सुरक्षा बलों द्वारा इनकाउंटर में मारे गिराए हैं और आपको बता दूँ जो इसके साथ आतंकवादियों के साथ जो एक ट्रक ड्राइवर मौजूद था, एक क्लीनर मौजूद था, उन्हें जो है कस्टडी में ले लिया गया है और अभी तक जो है एनकाउंटर जारी है। वो ट्रक नंबर मैं बता दूं, ये है ट्रक नंबर JK03 F1478 या अनंतनाग का ट्रक है और मैं आपको बता दूं ये जम्मू से लेकर श्रीनगर की तरफ जा रहा था। यहाँ पे संदिग्ध गतिविधि जो इनको लगी और इन्होंने जो है सर्च ऑपरेशन अभी तक जो है जारी है। जो 2 आतंकवादी जो हैं वो यहाँ से, ये वो जगह है जहाँ से 2 आतंकवादी जो है यहाँ से नीचे की ओर गए हैं और सर्च ऑपरेशन जो है हमारी सुरक्षा बलों द्वारा जारी है। See, this operation started early in the morning today, around 5 o'clock. Our police Naka at this Ban Toll Plaza, they were conducting checking of the vehicles. The truck that you have seen came here, truck was stopped for checking. And when the truck was stopped, boys were about to go to check the truck and immediately fire came from within the truck and our boys also retaliated. During the retaliation, one terrorist was killed right on the spot there and then, and one of our Jawans from the police got a bullet in his arm. He's been evacuated to hospital. We have seen him. He is stable. Subsequently, the encounter and the operation carried on. Our police parties from various parts came and joined the operation. Army also came in. CRP also joined. So all the parties together carried on the operation. Up till now the operation was on. During the operation, 2 more terrorists have been killed. So now total 3 terrorists have been killed. As per preliminary reports, this group has crossed from IB, from Dyalachak, Hiranagar area. And they have come in the morning today only. They were lifted by the truck last evening from that area and they were on way to Srinagar. The group, as per preliminary reports, belong to Jaish-e-Mohammed. We have also captured the truck driver and the conductor in one of our nakas. Further interrogation of those people is on. So whatever further details are received, that will be shared with you. Let me tell you, very large quantity of arms and ammunition have been seized from them. Even though the number of terrorists killed is 3, but the number of weapons that they brought is 6. So 3 more weapons they have brought, and the possibility is that these 3 weapons were going for some other group who is already active in Kashmir. Sir, is there a possibility that the number could be much higher of these terrorists? See, as per the preliminary interrogation of the truck driver and the conductor, they say the number is 3, but we will not close down the operation as of now. Operation will continue because initially the figure that came was the number is 3 to 4.
So we would continue with our operation till we sanitize this area. ये all are Pakistani terrorists? ये सारे पाकिस्तानी They all appear to be Pakistani terrorists and they belong to Jaish-e-Mohammed as per the preliminary सर reports. 2018 में You think the tunnel has been there where from they had sneaked in? Tunnel has been इसी there? तरह से ट्रक से आए थे और सर सेम मॉडस ऑपरेंडी यहाँ हुआ है ये Yeah, क्यों कहाँ हो रही their है सर आप same लोगों से? modus operandi has been repeated by them earlier in September 2018 when the last encounter at Jhajjar Kotli had taken place. Similar modus operandi was used then. We were aware of this kind of modus operandi, so that is why we are very conscious when this kind of truck with this kind of load goes to Srinagar. So therefore, our boys were very conscious. They were fully sensitized about the kind of search that is required to be conducted. I compliment the police and CRP party who was having Naka and checking here. They have done a commendable job. Sir, do you think that a major terror plan has been averted by the security forces and Jammu and See, Kashmir when police? the terrorists would come with such a huge arms and ammunition and a big group of Jaish-e-Mohammed, definitely they've come for terror acts only. They haven't come for any play here. So definitely the acts that they could have carried out have been सर इतनी बड़ी thwarted. मात्रा में हथियार जो पकड़े जाना तो क्या लगता है कि वेपन्स की वहाँ पे कमी होगी तो इसलिए यहाँ से 3 आतंकी और जो 6 हथियार लेके जा रहे थे ये बात सही है कि वेपन्स की शॉर्टेज कश्मीर के एरिया में अभी पाई जा रही है और इसके चलते एक्स्ट्रा वेपन जो पाकिस्तान भेज रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट को आर्म किया जाए वही लग रहा है. Driver and conductor are from which Sir, place? in Driver and conductor are from which place? They are from Pulwama district. They had transported earlier also terrorists or for the first time they were taking them? That will come to know only after we interrogate them. The interrogation has just started. The questioning has just started. That will be able to say only after they are. One last question, how long the operation will continue now? Operation would continue till we clear the area. The area is under a cordon and our parties are on. They are into the operation now. And I think shortly the area will be sanitized. And after that सर हम only माने कि आईबी के पार अभी बहुत सारे आतंकवादी बैठे हैं जो इसी मौके की तलाश में हैं. देखिए आईबी एंड एलसी के दोनों तरफ जो है टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो इनके लॉन्च पैड्स पे बाकी जगहों पे एज पर रिपोर्ट्स ऑन है. इनकी अभी और कोशिश है कि इस तरीके से जो टेररिस्ट को पुश इन किया जाए बट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह पर अपनी जगह पे अपना कार्रवाई कर रही हैं. काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और स्ट्रेंथन किया गया है और किया जाएगा. और आई अगेन compliment our police and CRPF team who's done a wonderful job, and then the subsequent operation by police, CRP, army, everybody together, they have done a wonderful job. As of now 3 terrorists have been eliminated and we'll send. एक सिक्योरिटी वाला जो मौके वारदात पे मौजूद था, ये जानते हैं उनसे, उनका क्या कहना है? सर मेरी ड्यूटी थी, मैं प्राइवेट सिक्योरिटी हूँ, कर्नल परमार सिक्योरिटी से काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ. मेरी ड्यूटी के दौरान सुबह सर 5:40 पे मेरे को पता चला कि कुछ इधर हरकत हुई है और फायर करके कोई बंदे भागे हैं. तो मेरे साथ दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था सतनाम सिंह और डीजी ऑपरेटर था अविनाश कुमार. मैंने उनको बोला यार आप थोड़ा अलर्ट रहना, हो सकता है कोई बंदे भागे हैं, इधर ना आ जाएँ. तो वो बंदे भी अलर्ट हो गए, हम ही हो गए. तो सर बाहर कोई 5 मिनट के बाद एक बंदा आया और वो टनल के अंदर घुसा थोड़ा भागता हुआ. तो मैंने उसको आवाज़ लगाया, मैं भाई कहाँ जा रहा है? वो बोलता है मैं श्रीनगर जा रहा हूँ. मैं कहाँ से आया? बोला कश्मीर से. तो बोला ये रास्ता कहाँ जाता है? मैंने श्रीनगर ही जाता है. बोला कितनी दूर है इधर से? मैंने बोला 20 किलोमीटर है. तो बोलता उधमपुर कितनी दूर है? मैंने बोला 80 किलोमीटर है. तो बोलता मेरे को उधर जाना है. मैं अभी कोई गाड़ी नहीं है, जब कोई गाड़ी गुड़ी आएगी तेरे को हम छोड़ देंगे, अभी तू बैठ जा. तो वो काँप रहा था, डर रहा था. मैं बोला क्यों डर रहा है तू इतना, क्यों काँप रहा है? तो बोला कुछ नीचे हो गया. मैं तो तू क्यों डर रहा है? हम भी इधर, हम नहीं डर रहे, तू क्यों डर रहा है इतना? तो बोला नहीं सर. मैंने बोला यार कोई बैठ जा, तो पानी छन पी. तो मैंने अपने दूसरे बंदे को बोला इसको पानी पिलाओ. पानी पिलाया. तो हमने सुबह चाय बनाया था, तो उसको मैंने बोला चाय का कप भी दे दो उसको चाय दिया. और उन दोनों को मैंने बोला इसको एंगेज करो. मैं बाहर आया, मैंने सर अपने टंडर सुपरवाइजर हमारे ऑनरी कैप्टन चमलाल साहब, उनको रिपोर्ट दिया, NH वालों को रिपोर्ट दिया. मैं सर ऐसे एक बंदा है और हमें सस्पेक्ट लग रहा है और नीचे कुछ हरकत हुई है, तो मैंने उसको रोक के रखा हुआ है इधर. तो मेरे उन्होंने बोला आप इसको एंगेज करके रखो, तो हम पुलिस पार्टी को बताते हैं. तो उसके बाद सर उन्होंने पुलिस पार्टी को बताया, DSP साहब आए पुलिस पार्टी के साथ और उसको लेकर आ गए सर हमारे पास. सर किस प्रकार के हाव भाव थे, क्या उसके कपड़े हाव भाव पहने थे, सर क्या हथियार लेके उसने था? पैंट वेपन उसके पास नहीं था उस टाइम. उसने पैंट रखी थी, जर्सी पहन रखी थी और लाल रंग का एक स्कार्फ था उसके पास. हाव भाव उसके लगता था कि ऐसे सस्पेक्ट टाइप डरा हुआ था और भाग रहा था वो. और उससे मैंने बात की, कुछ उसने दूसरी लैंग्वेज कोई यूज़ नहीं की सर, पंजाबी और अपना लोकल भाषा का इस्तेमाल कर रहा था. और उसको ये भी बोला हमने कहाँ से आया, तो मेरे को उसने बोला पहले तो बोला मैं कश्मीर से आया हूँ टवेरा में. फिर उसको थोड़ा बाद में बोला, तो बाद में बोला ट्रक में.
तो फिर उसमें सर हमें डाउट पड़ गया था, तो इसलिए हमने पुलिस पार्टी को रिपोर्ट दे दिया जिस सर। प्रकार से सर इनकाउंटर यहाँ शुरू हुआ था, कितना वक्त, कितना टाइम फ्रेम था, कितना वक्त में आपको पता लगा और ये आदमी कितनी देर सर आपके पास मेरे को काउंटर जब स्टार्ट हुआ था मेरे को सुबह 5:40 पर पता चला, और 5:40 से लेकर 6 बजे के बीच की बात, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर बंदा उधर पहुँच गया था। सर आपने अपनी बातों में कहा है कि कुछ फ़ोन भी आपने उसका चेक किया, उसमें कुछ हाँ, फोटोग्राफ्स थे क्या? फोटोग्राफ्स है उसमें उसके, क्या-क्या? गाड़ी के साथ है, ट्रक के साथ फोटो हैं, सब उसके फोटो हैं, और बाकी कोई हमने ऐसा फोटो तो नहीं देखा उसके बाद, लेकिन गाड़ी के साथ फोटो हैं उसके, कुछ पंजाब के भी लगते हैं और राजस्थान के भी लगते हैं। सर क्या वो इसी ट्रक में ट्रैवल करके आया था जिस हाँ सर, मेरे को तो उसने बोला मैं टवेरा में आया हूँ, लेकिन बाद में बोला था ट्रक में। अभी कौन से ट्रक में आया सर ये तो नहीं हमें पता, क्योंकि वो इधर से भागा था और पकड़ा गया 2 नंबर टंडल में। अभी कौन सा था ये नहीं पता सर हमें। सर क्या उसके फ़ोन में किसी और प्रकार के कोई सस्पेक्ट किसी सर उसका स्मार्टफोन था, वो लॉक था, तो हमने नहीं सर देखा उसमें ज़्यादा, बाद में पुलिस वाले ले गए थे फ़ोन उसका, तो उन्होंने देखा तो पता नहीं चला। 5 से 6 आतंकवादी जो बताए जा रहे थे, जिसमें से 3 जो है मार दिए गए हैं, और सूत्रों के अनुसार ये भी खबर आ रही है 2 से 3 से ज़्यादा भी आतंकवादी हो सकते हैं जो इन झाड़ियों में छुपे पड़े हैं। और आपको बता दूं सुरक्षा बलों द्वारा जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, उन्होंने 3 आतंकवादी एनकाउंटर में मार गिराए, और आपको बता दूं आतंकवादियों से 6 हथियार भी बरामद किए गए, और सबसे बड़ी कामयाबी बताई जा रही है 3 आतंकवादी जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, और कुछ आपको बता दूं कुछ छुपे हुए भी है, और जो सर्च ऑपरेशन वो अभी तक जारी है, और बताया जा रहा है जैश ए मोहम्मद के ये आतंकवादी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं जो नेशनल हाईवे है, जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये बंद कर दिया गया, और जब तक कोई क्लियरेंस नहीं मिलेगी, जब तक ये नहीं पता लग पाएगा कि सब सुरक्षित है, तब तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बंद रहेगा। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।